الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف فرمان مصطفیٰ علیہ السلام تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا تمہارے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، آج جنوری کی 7 تاریخ ہے اور جو ہی جنوری کا مہینہ لگتا ہے موسم سرما یعنی سردی کی بہار آ جاتی ہے۔ آج کے اس بیان میں انشاءاللہ علم فلکیات اور علم ہیئت کے تعلق سے کچھ باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے اور اس علم کے حوالے سے ہم بحث کریں گے سردی اور گرمی یہ دو موسم کیوں آتے ہیں۔ پھر اس میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ سردی دسمبر جنوری فروری ہی میں کیوں آتی ہے اور گرمی مئی جون جولائی ہی میں کیوں ہوتی ہے۔ جب سے دنیا بنی تب سے لے کر آج تک یہی معاملہ چلا آ رہا ہے، کبھی بھی اس کے اندر رد و بدل نہیں آیا، یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ گرمی دسمبر جنوری فروری میں پڑی ہو اور سردی مئی جون جولائی میں پڑی ہو۔ اس کے اندر کیا سبب ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، انشاءاللہ چند باتیں علم فلکیات اور علم ہیئت کے تعلق سے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ سب سے پہلے ہم حدیث پاک کی جانب آتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کیا سردی اور گرمی کے متعلق کچھ بیان فرمایا ہے؟ تو جی ہاں، بخاری اور مسلم کی حدیث پاک موجود ہے۔ نبی اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں شکایت کی اور عرض کیا، یا اللہ میرے اندر جو چیزیں ہیں ان میں سے بعض نے بعض کو جلا دیا ہے، خاک کر دیا ہے، راکھ کر دیا ہے۔ جب جہنم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ شکایت کی اپنی گرمی کے تعلق سے، تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت عطا فرمائی۔ ایک سانس وہ سردی میں لیتی ہے اور ایک سانس گرمی میں لیتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جہنم اپنی سانس باہر کو نکالتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے، کیونکہ جہنم میں گرمی ہے اور جب سانس وہ باہر نکالتی ہے تو اس کی گرمی پوری دنیا میں چھا جاتی ہے۔ اور دوسری سانس وہ دسمبر کے مہینے میں لیتی ہے اور اندر کی جانب لیتی ہے تو اس کی گرمی اس کے اندر جاتی ہے، لہذا دنیا میں گرمی ختم اور سردی آ جاتی ہے۔ تو حدیث رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں گرمی اور سردی کا سبب یہ بیان کیا گیا کہ گرمی اور سردی جہنم کے سانس باہر نکالنے اور اندر سانس لینے کی وجہ سے ہوا کرتی ہے۔ لیکن جب وجود میں علم فلکیات آیا، علم ہیئت آیا، تو علم ہیئت اور علم فلکیات والوں نے اس فلکیات
के निज़ाम में गौर व फिक्र किया और उन्होंने हुक्म लगाया कि गर्मी और सर्दी आने की वजह कुछ और है। लेकिन प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हदीसों में जो वजह बयान की गई वो भी कोई जुदा गाना नहीं है, बल्कि हो सकता है कि ये गर्मी की शिद्दत और ये सर्दी की शिद्दत जहन्नम के सांस लेने की वजह से हो। अच्छा, जब भी सर्दी या गर्मी आती है तो हमारे मुआशरे में बेशुमार अफराद की ज़बान पर ऐसे कलिमात जारी हो जाते हैं जो नाजेबा कलिमात होते हैं, जो गुनाहों की जानिब ले जाने वाले होते हैं। अल्लाह ताला की तकदीर, अल्लाह ताला के फ़ैसले का इनकार और उस पर एतराज़ करने पर मबनी होते हैं। लिहाजा हमें ऐसे अल्फाज, ऐसे कलिमात निकालने से बचना चाहिए। जैसे आज बहुत सर्दी है तो लोग कहेंगे यार अल्लाह ताला ने कितनी सर्दी फरमा दी। ये बूढ़ों के लिए तो बहुत तशवीशनाक बात है, और वो सर्दियों में भी गर्मियों में भी ऐसे कलिमात निकाल देते हैं जो अल्लाह ताला के निज़ाम कुदरत पर एतराज़ हुआ करते हैं। लिहाजा हमें ऐसे कलिमात नहीं निकालने चाहिए। हाँ, अगर कुछ कहना है तो मैं आपको एक कलिमा बताता हूँ कि अगर आप ये कहेंगे तो आपको इसमें सवाब भी मिलेगा, फ़ायदा भी होगा। जैसा कि हदीस पाक में आया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बहुत शदीद सर्दी हो तो बंदा यूं अर्ज करे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह आज बहुत सर्दी है, मुझे जहन्नम के ज़महरीर से बचा। तो वो जहन्नम कहती है, ऐ अल्लाह तेरा ये बंदा मुझसे पनाह मांग रहा है, इसको पनाह दे दे। तो अल्लाह ताला उसको पनाह अता फरमा देता है। तो आज भी सर्दी ज़्यादा है, तो आइए मिलकर कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, आज बहुत सर्दी है, ऐ अल्लाह हमें जहन्नम के ज़महरीर से बचा। ज़महरीर ये जहन्नम में एक वादी है जिसमें बहुत ठंड है, उसमें ठंड का अजाब है। और हदीस के अल्फाज आगे भी हैं कि जब शदीद गर्मी हो और बंदा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह आज बहुत गर्मी है, मुझे जहन्नम की गर्मी से बचा। तो जहन्नम अर्ज करती है, मौला तेरा बंदा मुझसे पनाह मांगता है। अल्लाह ताला फरमाता है मैंने उसको पनाह दे दी। तो प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, गर्मी हो या सर्दी हो, कोई सा भी मौसम हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, अल्लाह का जिक्र करें और उसके अज़ाबात से पनाह मांगे, तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। क्योंकि हमारे नाज़ेबा कलिमात बोलने से, निकालने से सर्दी जाने से रही, गर्मी जाने से रही। हमारे कहने से न गर्मी कम होगी न सर्दी कम होगी, जो मौसम है वो होकर ही रहेगा। मगर हम अपने ऊपर इन कलिमात का वबाल अपने ज़िम्मे ले लेते हैं। लिहाजा हमें ऐसे कलिमात निकालने नहीं चाहिए जो हमारे लिए बाइसे खसारा और बाइसे नुकसान हो। और हमारे बुजुर्गान दीन रहिमहुमुल्लाहुल मुबीन जब सर्दी आती तो खुश हो जाते, गर्मी आती तो खुश हो जाते हैं। और उनकी ज़बान पर क्या कलिमात होते हैं ये भी सुनिए कि जब सर्दी आती तो बुजुर्गान दीन खुश हो जाते और कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ सर्दी आ गई, अब तो हम अल्लाह ताला के लिए खूब रोज़े रखा करेंगे। क्यों? क्योंकि सर्दियों में दिन छोटा होता है। जब छोटा दिन होता है तो रोज़ा रखना आसान होता है, तो लिहाजा वो रोज़े की कसरत करने पर खुश होते हैं। और जब सर्दी आती तो इस पर भी खुश होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि सर्दी आ गई, क्योंकि अब रात लंबी होगी, हम खूब अल्लाह ताला की इबादत किया करेंगे। और जब गर्मी आती तो भी खुश होते हैं और ये कहते हैं कि गर्मी आ गई, अब दिन बड़े होंगे, अब रोज़ा रखने में मशक्क़त ज़्यादा होगी, तकलीफ़ ज़्यादा होगी। जब रोज़े रखने में मशक्क़त और तकलीफ़ ज़्यादा होगी तो अल्लाह ताला इसका अज्र भी खूब अता फरमाएगा। क्योंकि गर्मी के दिन के रोज़े ये जहन्नम और क़ियामत के दिन के अजाब से बचाने वाले होंगे। तो इस तरह वो अपनी इबादत को मद्देनज़र रख कर मौसमों की तारीफ़ किया करते थे, मौसमों की तारीफ़ किया करते थे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करते थे।
लेकिन प्यारा और मोहतरम इसलिए भैया हमारा हाल कुछ और है, लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि जो भी मौसम आए उसमें खुश रहना चाहिए। और अल्लाह ताला ने ये मौसम जो बनाए हैं ना, अल्लाह ताला की कुदरत बहुत बालिग है और अल्लाह ताला बहुत हिकमत वाला है। उसकी हिकमतें अगरचे हमारे समझ में नहीं आती, लेकिन जब समझ में आती हैं तो बंदा दंग रह जाता है कि वाकई में अल्लाह ताला की कुदरत है। देखें, अगर सर्दी ना होती तो बहुत सारे फल फ्रूट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सर्दी के साथ वाबस्ता है कि अगर सर्दी ना आए तो उन चीज़ों का वजूद ही मिट जाए, वो चीज़ें पैदा ही ना हों। और गर्मी में भी ऐसा है कि अगर गर्मी ना आए तो गर्मियों में भी कुछ चीज़ों का वजूद होता है कि वो गर्मियों ही में होती हैं। जैसे हमने बकरियों के बारे में सुना होगा कि जितनी गर्मी ज़्यादा होती है, जितनी लू ज़्यादा चलती है, बकरी उतनी ही फरबा होती है, तंदुरुस्त होती है। होती कि नहीं होती? लेकिन जब बारिश का सीजन आ जाता है तो बकरी के लिए मुजिर और भैंस के लिए फायदेमंद होती है। भैंस को तो नहाने के लिए चाहिए, जब बारिश होगी तो भैंस के तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला ने हर मखलूक के लिए कुछ ना कुछ पैदा किया है। अगर गर्मी बूढ़ों के लिए नुकसानदेह है तो जो अभी नवजायदा बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए तो फायदेमंद है। सर्दी अगर बूढ़ों और बच्चों के लिए नुकसानदेह है तो जवानों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि सर्दियों में आदमी ज़्यादा खाना खाता है, उसका जिस्म फरबा हो जाता है। तो प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, हर मौसम में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ चीज़ें रखी हैं जो हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं। अगर वो मौसम ना हो तो फिर ये फ़ायदे हमसे फौत हो जाएं। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आइए हम इल्म फल्कियात की जानिब आते हैं कि इल्म फल्कियात वाले कहते हैं कि गर्मी और सर्दी कैसे आती है। तो ये नक्शा आप बोर्ड में देख रहे होंगे, ये जो गोला है ये हमारी दुनिया है। ये जो गोला है, उधर वालों को अगर ना दिखे तो सामने आ जाइए। बहुत दिलचस्प बात है और ये अकायद से भी ताल्लुक़ रखती है कि अगर बंदा इन बातों को मद्देनज़र ना रखे तो फिर वो इस्लाम से खारिज भी हो सकता है। तो ये जो गोला आपको दिख रहा है ये हमारी दुनिया है। अच्छा, दुनिया के बाद फिर ये जो गोला आपको छोटा से दिख रहा है ये चांद है। फिर इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ना ये सूरज है। तो सूरज हमारी दुनिया से बहुत गुना बड़ा है। तो इसको हमने साइड में बना दिया है। अब जो इल्म फल्कियात है ना, इल्म फल्कियात दो किस्म की है, एक इस्लामी फल्कियात और एक है अंग्रेज़ी फल्कियात। यहाँ पर जो हम बहस करेंगे वो इस्लामी फल्कियात के एतबार से बहस करेंगे, क्योंकि जो फल्कियात अंग्रेज़ी है, इंग्लिश फल्कियात है, साइंस है, वो हमारे नज़रिए, हमारे इस्लाम के अकीदे से कुछ जुदा है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे इस्लाम को हम में रहने नहीं देंगी अगर हम उस पर एतिकाद कर लें। जैसे उनका एक मसला ये है कि वो कहते हैं कि ज़मीन घूमती है, सूरज अपनी जगह पर है और ज़मीन घूमती है, और कुरान पाक में है कि ज़मीन साकिन है और सूरज। हम कहते हैं कि सूरज घूमता है, इस्लाम कहता है सूरज घूमता है, चांद घूमता है, ज़मीन साकिन है, और साइंस कहती है कि नहीं साहब, सूरज चांद ये नहीं घूमते हैं, ज़मीन घूमती है। तो अब ये नज़रिया, ये अकीदा कुरान के ख़िलाफ़ हुआ, कुरान की आयत को झुटलाना हुआ, और जो कुरान की आयत को झुटलाए वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो हमारा अकीदा ये है कि ये दुनिया साकिन है और ये सूरज और चांद चक्कर लगा रहे हैं। तो चांद ऐसे चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता है, चक्कर लगाता रहता है, सूरज भी चक्कर लगाता है। तो ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो गोला देख रहे हैं आप, ये हमारी दुनिया है। इस दुनिया को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन आधी दुनिया को इधर कर दिया, आधी दुनिया को इधर कर दिया। अच्छा, अब इस दुनिया के किलोमीटर और सर्दी गर्मी के निज़ाम और बहुत सारे मुआमलात, जैसे किबला डायरेक्शन है या किसी शहर का आपको जहद पता करना है कि फुला शहर किस तरफ है, इसके लिए इल्म फल्कियात वालों ने दो इस्तिलाहात इजाद की। एक को बोलते हैं तूले अर्द,
एक को बोलते हैं अर्ज़े बलद और दूसरे को बोलते हैं तूले बलद। तूले बलद की जो लाइनें खींची जाती हैं वो यहां से सीधी सीधी खींची जाती हैं, ऊपर से नीचे की जाने आती हैं, लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। मौजू हमारा सिर्फ इससे वाबस्ता है, अर्ज़े बलद से। अर्ज माने होता है चौड़ाई और तूल माने होता है लंबाई। तो यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई का दायरे बनते हैं और यहां से लेकर वहां तक ये चौड़ाई के दायरे बनते हैं। तो इल्म फल्कियात वालों ने दुनिया को दो हिस्से में किया। दो हिस्से में करने के बाद कहते हैं कि 22 मार्च को सूरज बीचों बीच दुनिया के होता है। 22 मार्च को सूरज दुनिया के बीचों बीच होता है। तो देखिए मैंने 22 3 लिखा है ना, 3 से मुराद मार्च, तीसरा महीना। 22 तारीख तीसरा महीना यानी 22 मार्च को सूरज यहां पर होता है और सूरज चक्कर लगाता है। ये है मशरिक यानी पूरब, जिसको ईस्ट कहते हैं। यह है वेस्ट, यह है उत्तर, यह है साउथ, दक्षिण। तो सूरज जो चक्कर लगाता है वो मशरिक से मगरिब की जानिब लगाता है, यानी ईस्ट से वेस्ट की जानिब आता है। तो 22 मार्च को सूरज दुनिया के बीचों बीच होता है, दुनिया के बीचों बीच होता है। फिर 22 मार्च के बाद जब 23 मार्च का दिन आता है तो इससे थोड़ा से ऊपर जाता है, यानी यहां से ले लें, फिर जाता 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 ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है। फिर 23.5 दर्जे तक, 23.5 दर्जे तक सूरज ऊपर चढ़ता है और 23.5 दर्जे की मंजिल पर जब पहुंचता है तो 22 जून की तारीख आ चुकी होती है। 22 जून की तारीख आ चुकी होती है। फिर 22 जून से सूरज नीचे आता है और नीचे आता है, आता है, आता है, आता है। 22 सितंबर को फिर इस लाइन पे आ जाता है, यानी दुनिया के बीचों बीच आ जाता है। फिर 22 सितंबर से नीचे की जानिब जाता है तो ये 22 दिसंबर को एकदम नीचे पहुंच जाता है, यानी इस लाइन में पहुंच जाता है। फिर 22 दिसंबर से ऊपर चढ़ना शुरू करता है और 22 मार्च को फिर दुनिया के एकदम बीचों बीच आ जाता है। अब गर्मी क्यों आती है, सर्दी क्यों आती है, इल्म फल्कियात वाले बताते हैं कि जिस मुल्क का फासला सूरज के चाल से 57 दर्जे होगा, उस मुल्क में बर्फबारी पड़ने लगेगी, उस इलाके में बर्फ पड़ेगी। और इससे कम होगा तो थोड़ा कम सर्दी होगी। अच्छा, फिर उसके बाद कहते हैं कि जब सूरज की चाल और उस इलाके से दूरी बन जाए 27 दर्जे तो फिर गर्मी शुरू हो जाती है। अब देखिए यहां पर अहले फल्कियात यहां पर 0 डिग्री लेते हैं, फिर यहां से लेकर यहां तक ये 90 डिग्री लेते हैं, फिर यहां से लेकर यहां तक ये 90 डिग्री, यानी आधी दुनिया 90 डिग्री, आधी दुनिया ये 90 डिग्री। जब सूरज एकदम बीचों बीच दुनिया के होता है और जब बीचों बीच आता है तो इस लाइन को बोलते हैं खत्ते इस्तवा। जब खत्ते इस्तवा यानी दुनिया के बीचों बीच सूरज 22 मार्च को आता है तो जो 57 डिग्री के फासले पर मुमालिक होंगे और इलाके होंगे वहां तो बर्फबारी होगी, और जो 57 से कम होंगे और जब 27 डिग्री तक पहुंचेंगे तो वहां गर्मी होगी। तो मिसाल के तौर पर 22 मार्च को सूरज एकदम बीचों बीच होता है। आप ये लो, सूरज ये बीचों बीच है। हमारा आगरा ये 27 दर्जे में है, ये आप देख रहे होंगे, ये हमारा आगरा है। तो आगरा 27 दर्जे में है। तो जब सूरज दुनिया के बीचों बीच होता है और हमारा आगरा एकदम 27 दर्जे पर वाक़े है, तो जब 27 दर्जा हमारे आगरा का सूरज के दरमियान फासला बना तो हमारे यहाँ मार्च से गर्मी शुरू हो जाती है ना। अच्छा, फिर 22 मार्च को सूरज ऊपर आता है तो 1 दर्जा आया, तो हमारे और आगरा के दरमियान 26 दर्जे बचे।
फिर आया यहां तक कि 23.5 दर्जे, और 23.5 दर्जे हमारे हिंदुस्तान के शहर भोपाल में खत्म हो जाता है। यानी सूरज भोपाल के ऊपर से, ऐन ऊपर से आता है, और जब भोपाल में सूरज यानी 23.5 दर्जे में पहुंचता है और हमारा आगरा 27 दर्जा है, तो इसके दरमियान कितना बचा? 3.5 दर्जे। अब सूरज से 3.5 दर्जे जब रह जाता है, तो जब सूरज यहां पर आता है तो तारीख होती है 22 जून, और आप देखते होंगे 22 जून को कड़कती हुई गर्मी पड़ती है, अच्छी खासी गर्मी पड़ती है। तो सबब है गर्मी पड़ने का कि हम सूरज से करीब हो जाते हैं। अच्छा, कश्मीर में गर्मियों में भी इतनी गर्मी नहीं पड़ती, इसलिए कि जब सूरज 23.5 दर्जे पर आ जाता है तो कश्मीर हमारे यहां से है 34 दर्जे पर। तो जब सूरज भोपाल में आया था 23.5 दर्जे में आ गया था, तो आगरा से सिर्फ 3.5 दर्जे बाकी था, और कश्मीर का जो श्रीनगर है वो 34 दर्जे पर है। तो 3.5 ये और 7 वो, 7 3 10, 10.5, 10.5 दर्जा फासले पर होता है। यानी कश्मीर का श्रीनगर गर्मियों में भी सूरज से 10.5 दर्जे दूरी पर होता है, और जो 10.5 दर्जे पर दूरी पर हो तो वहां पर नॉर्मल सी गर्मी पड़ती है, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती। तो जब सूरज बीचों बीच होता है और वहां से लेकर 57 दर्जे की दूरी में जो मुल्क होते हैं वहां बर्फबारी पड़ने लगती है, और इसीलिए यहाँ पर जो इलाके ऊपर हैं और यहाँ पर जो नीचे इलाके हैं वो 57 दर्जे पर हमेशा रहते हैं। इसलिए यहाँ पर अंटार्कटिका का नाम सुना होगा, वहाँ बर्फबारी पड़ती है और -200-300 डिग्री मौसम चला जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ सूरज पहुँचता ही नहीं है, बहुत दूर रहता है, इस वजह से वहाँ बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ की वजह से वहाँ कोई जीवन नहीं है, वहाँ कोई इंसान नहीं है। इसी तरह ये ऊपर भी, अच्छा, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, इसको बोलते हैं साउथ पोल। तो ये अंटार्कटिका वगैरह जो है ये साउथ पोल में है, यहाँ बर्फ ही बर्फ है, इस वजह से कि वहाँ सूरज ही नहीं पहुँच पाता। अच्छा, फिर आपने सुना होगा कि कई इलाके ऐसे भी हैं कि जहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें हुआ करती हैं। तो जी जनाब, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत बात है कि यकीनन कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रात होती है, और बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ 80 दिन रात होती है, और फिर मुसलसल दिन ही दिन होते हैं, यानी साल में 80 रातें होती हैं, बाकी दिन दिन होते हैं। और बाज़ इलाके वो हैं कि वहाँ पर साल में सिर्फ 80 रातें होती हैं, बाकी 80 दिन होते हैं, बाकी रातें। और दूसरा इसका अपोजिट है कि 80 रातें होती हैं, बाकी दिन दिन। तो ऐसे ही भी इलाके हैं, इसलिए कि ये सूरज उन तक नहीं पहुंच पाता। अच्छा, ये रात और दिन, 6 महीने के दिन 6 महीने के रात क्यों होते हैं? तो इल्म फल्कियात के माहिरीन ने बताया कि हमारी निगाह जो आगे तक देखती है वो 90 दर्जे तक देखती है। जैसे एक इंसान यहाँ पर खड़ा हुआ है तो ये सिर्फ यहाँ तक देखेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 दर्जे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 90 दर्जे। जो साइंस या मैथ वगैरह पढ़े हैं तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो कोई भी सर्कल होता है, दायरा होता है, ये होता है कितना, 360 दर्जे का। अब 360 को हम आधा करते हैं तो 180 बनता है, 180 को जब आधा करते हैं तो 90 बनता है। तो कोई आदमी यहाँ पर खड़ा है तो वो नीचे अपने नहीं देख पाएगा, सिर्फ 90 डिग्री तक देख पाएगा। तो जब सूरज इस दायरे के नीचे आता है तो इधर वाले 90 दर्जे हैं। तो अब 6 महीने सूरज यहाँ रहता है, 3 महीना नीचे आता है, 3 महीना फिर ऊपर जाता है, फिर 3 महीने ऊपर जाता है, फिर आता है। तो इस दायरे में जाने के बाद दोबारा वापस आने में सूरज को 6 महीने लगते हैं, और जब यहाँ से ऊपर जाता है फिर वहाँ से आता है तो 6 महीने लगते हैं। तो जब सूरज नीचे की जानिब आ जाता है तो यहाँ रात शुरू हो जाती है, यहाँ ऊपर की जानिब नॉर्थ पोल में ये रात शुरू हो जाती है। और जब सूरज खत्ते इस्तिवा से ऊपर की जानिब होता है यानी 22 मार्च, तो 22 मार्च से 22 सितंबर तक यहाँ रातें होने लगती हैं, यहाँ रातें होने लगती हैं।
تو اس وجہ سے علم فلکیات کہتے ہیں کہ سردی ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو نظام چل رہا ہے، یہ نظام جب سے دنیا بنی تب سے چل رہا ہے، یعنی سورج خط استوا پر آتا ہے 22 مارچ کو، پھر یہ اوپر جاتا ہے اور اوپر اپنے حد کو پہنچتا ہے 22 جون کو، پھر وہاں سے نیچے آتا ہے تو پہنچتا ہے 22 ستمبر کو، پھر نیچے آتا ہے تو 22 دسمبر کو، اور پھر وہاں سے چلتا ہے تو پھر پہنچتا ہے 22 مارچ کو۔ یہ نظام جب سے دنیا بنی تب سے چل رہا ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم سورج سے 27 درجے اور اس سے زیادہ ہم دور ہو جاتے ہیں تو ہمارے ملک میں سردی پڑنے لگتی ہے، اور یہ ہوتا اس وقت ہے جب دسمبر، کیونکہ دسمبر، جنوری، فروری کے مہینے میں یہ سورج نیچی دنیا میں ہوتا ہے، اس وجہ سے سردی ہوتی ہے۔ اور اس ملک میں، اور یہاں پر جو نیچے والی دنیا ہے نا، یہاں پر پڑتے ہیں ساؤتھ افریقہ کا کچھ علاقہ، اور کچھ علاقہ پڑتا ہے آسٹریلیا ہے، اور آپ نے صلی اللہ تعالی علی محمد فجی کا نام سنا ہوگا، فجی، وہ فجی کا علاقہ پڑتا ہے۔ اس وجہ سے ابھی اس وقت، جس وقت ہمارے یہاں شدید سردی کا موسم ہے، عین اسی تاریخ کو وہاں اگر آپ کے کانٹیکٹ میں ہو کوئی لوگ تو ان سے پوچھے گا وہاں شدید گرمی پڑ رہی ہوگی۔ آسٹریلیا ہے، فجی ہے، اور افریقہ کا کچھ نچلا حصہ جو ساؤتھ سے ملا ہوا ہے، یہاں پر شدید گرمی ہوگی۔ اور جب ہمارے یہاں شدید گرمی ہوتی ہے تو ان کے یہاں شدید سردی ہوتی ہے، کیونکہ سورج ان کے یہاں سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے، بہت دور ہو چکا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں کہ آپ کسی چیز کو لیے بغیر کعبہ شریف کی سمت گھر بیٹھے نکال سکتے ہیں، کعبہ شریف کی سمت گھر بیٹھے نکال سکتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ایسے ہوتا ہے کیونکہ کعبہ معظمہ کا طول یہ ہے 22 ڈگری، تو سورج 23.5 درجے تک جاتا ہے اور کعبہ معظمہ یہاں پر پڑتا ہے۔ یہ جو میں نے لکھا یہاں پر کعبہ معظمہ ہے، یعنی مکہ مکرمہ، اور سورج 23.5 درجے تک اوپر جاتا ہے، یعنی یہاں تک جاتا ہے، تو ایک مرتبہ جانے کے وقت کعبہ پڑا، دوسری جانب دوسری مرتبہ آنے کے وقت پڑا، اور یہ ہوتا ہے دیکھیے 22 جون۔ تو 22 جون سے تھوڑا نیچے آئیے تو 17، 18 یا 16 جون کو جاتے وقت سورج مکہ مکرمہ کے عین اوپر سے گزرتا ہے، اور پھر آتے وقت جولائی کی 17، 18 تاریخ کو واپس آتا ہے۔ تو اس وجہ سے سال میں 2 دن ایسے ہیں کہ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی لکڑی گاڑ دیں اور عین دوپہر کے وقت سایہ جدھر بنے گا نا کعبہ شریف ادھر ہی ہوگا، کیونکہ سورج عین کعبے کے اوپر سے گزرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے، مکہ مکرمہ خط استوا سے 22 درجے پر ہے اور مدینہ منورہ 24 درجے پر ہے، اور سورج جاتا ہے کتنے درجے تک؟ 23.5 درجے تک۔ تو پتہ چلا کہ سورج مدینہ منورہ کے اوپر سے نہیں گزرتا، مکہ مکرمہ کے اوپر سے تو گزرتا ہے لیکن مدینہ منورہ کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ تو عاشقوں نے اس میں ایک نقطہ نکالا کہ یہ سورج مدینہ منورہ تک کیوں نہیں جاتا؟ تو کہتے ہیں کہ سورج میں گرمی ہے اور اللہ بھی جلال والا ہے، تو اس لیے اس کے شہر میں تو چلا جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، اور سورج کے اندر گرمی ہے تو سورج کے اندر یہ مجال نہیں کہ مدینۃ الرسول کو پار کرے، لہذا قدموں کا بوسہ لے کر واپس آ جاتا ہے، قدموں کا بوسہ لے کر سورج واپس آ جاتا ہے۔ اچھا، اب چاند کی بات دیکھیے، چاند بھی حرکت کرتا ہے، لیکن چاند حرکت کرتا ہے 40 یا 45 درجے کے اوپر جاتا ہے اور 45 درجے کے نیچے آتا ہے، یعنی اس کی چال چاند کی ایسے ہے، یعنی اتنے اوپر تک جاتا ہے، یعنی مدینے کے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور اتنے نیچے یعنی سورج کی چال کے بہت نیچے آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آ جاتا ہے کہ چاند میں گرمی نہیں ہے، اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو اجازت دے دی تو وہ مدینہ منورہ کی زیارت کر کے جاتا بھی ہے اور زیارت کر کے واپس آتا بھی ہے۔ تو عاشقوں نے یہ نقطہ بیان کیا، اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی
हिकमत है कि ये सूरज की चाल अल्लाह ताला ने इतनी ही रखी, 23.5 दर्जे ऊपर जाता है, 23.5 दर्जे नीचे आता है। चांद की चाल इससे भी ज़्यादा है, यानी वो 45 दर्जे के भी पार कर जाता है। अच्छा, अब ये जो चांद 45 दर्जे ऊपर और 45 दर्जे नीचे आता है, तो ये 1 महीने में फासला तय करता है। और सूरज 45 दर्जे ऊपर और 23.5 दर्जे ऊपर और 23.5 दर्जे जो नीचे आकर अपना फासला तय करता है, इसको 1 साल लगता है, 1 साल लगता है। तो सूरज की चाल से चांद की चाल ज्यादा है, क्योंकि चांद हमारे दुनिया से करीब है, और ये गालिबन 13 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है हमसे चांद, और सूरज उससे भी दूर है। आखिर में एक आपको बात बता दूं, 1912 ईस्वी में अमेरिका का एक साइंसदान ने ये पेशिन गोई की थी, क्योंकि वो कहते हैं कि ये प्लैनेट्स जो होते हैं, मंगल ग्रह, चांद ग्रह, बुध ग्रह, बृहस्पति ग्रह वगैरह, तो उसने कहा था कि सूरज, चांद, मंगल और ये जितने भी ग्रह हैं, ये सब एक सीध में आएंगे और ये सारे ताकत लगाकर सूरज पर हमला करेंगे, और सूरज पर एक सुराख होगा, उस सूरज से एक आग निकलेगी जो पूरे आकाश में, पूरे इस क्या बोलते हैं ब्रह्मांड में वो आग फैलेगी, और दुनिया में भी वो आग आएगी, जिसकी वजह से अमेरिका तो नेस्तो नाबूद हो जाएगा। 40 दिन तक जलजले दुनिया में रहेंगे और आधी दुनिया खत्म हो जाएगी। 1912 में पेशन गोई की थी आला हजरत के खलीफा मुफ्ती जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, और ये पंपलेट और ये खबर हर मुल्क के अखबार में छपी थी। तो अंग्रेज़ों का ज़माना था उस वक्त, तो अंग्रेज़ी अखबार चलते थे, तो उसमें भी ये खबर शाये हुई। मुफ्ती जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह ताला अलैह के हाथ वो इश्तिहार लगा, तो आप आला हज़रत की बारगाह में आए, कहें हुजूर आप फरमाइए इसके बारे में क्या फरमाते हैं। तो आला हज़रत ने कहा कि ये कुछ नहीं होने वाला। फिर जब इन्होंने सवाल किया तो आला हज़रत ने पूरी एक किताब लिखी जो फतावे रज़विया की जीनत बनी हुई है, उसमें ये रिसाला मौजूद है। आला हज़रत ने उसमें यह भी बताया कि फुला तारीख, फुला महीना और फुला सन के बारे में जो अमरीकी साइंसदान कह रहा है ना कि तमाम सैयारगान एक लाइन में आ जाएंगे, ऐसा है ही नहीं। और आला हज़रत ऐसा बता रहे थे, जिन्होंने इस रिसाले को पढ़ा है वो बगौर जान जाएंगे, क्योंकि आला हज़रत ने ऐसा लिखा है कि ऐसा लगता है कि आला हज़रत के पास कुछ था भी नहीं, और आला हज़रत के पास कुछ था भी नहीं साइंसी आलात। आला हज़रत ने बैठे बैठे कह दिया कि फुला सितारा फुला दर्जे पर होगा, फुला दर्जे पर होगा, फुला दर्जे पर होगा, फुला दर्जे पर होगा, और ये जो इसने पेशन गोई की है ये गलत है। और यकीनन ऐसा ही हुआ कि वो तारीख भी आई, वो महीना भी आया, वो सन भी आया। जब आया तो कुछ नहीं हुआ, उसके दांत खट्टे हो गए और आला हज़रत का डंका बजने लगा। तो प्यार और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आला हज़रत को अल्लाह ताला ने तमाम उलूम अता किए थे। तो ये जो मैंने बताया ना, ये आला हज़रत के रिसाले ही से बताया है। आला हज़रत ने इल्मे तौक़ीत पर भी महारत रखते थे, इल्मे हैयत पर भी, इल्मे फल्कियात पर भी। और आला हज़रत फरमाते हैं मेरे ज़माने से पहले इल्मे तौक़ीत में कोई जामे किताब नहीं थी, लेकिन आला हज़रत ने इसको बेहतरीन से बनाया भी, और आला हज़रत ने इसके कायदे भी बयान किए। और एक कायदा मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह, फिर कभी वक्त मिला तो बयान करने की भी सादत हासिल करूँगा। आला हज़रत ने 10 फार्मूले ऐसे बयान किए हैं कि आप किसी भी मकाम से बैठकर किसी भी जगह का डायरेक्शन यानी जहत निकाल सकते हैं। और आला हज़रत ने फरमाया कि इन 10 फार्मूलों में से किसी के ज़रिए भी अगर खाने काबा का सिमते किबला निकाल के आप नमाज पढ़ोगे, और ये मैं ऐसे नहीं कहता, यकीनन अगर अल्लाह ताला चाहे और उस नमाजी और काबे के दरमियान जितने पर्दे हैं उनको हटा दे, तो वो नमाजी देखेगा कि उसका चेहरा सीधे काबे के रुख है, यानी ऐन काबे को है, काबे के बीचों बीच है, 1 इंच भी इधर उधर नहीं होगा। और वो भी 10 फार्मूले आला हज़रत के फतावा रज़विया में लिखे हैं, बहुत बेहतरीन है। कहीं से भी आप बैठकर किसी भी मुल्क, किसी भी शहर या किसी भी गांव या किसी भी घर का आप जहत निकाल सकते हैं, सिमत निकाल सकते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह